इसकी एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी क्या है और ये बाकी यूनिवर्सिटी से किस तरह से अलग है। तो अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और कौन सी वेबसाइट से उसे अप्लाई करना होगा? पर वो जब जाएगा तो उसके हाथ में कोई ना कोई तरह का एक प्रमाण पत्र कह सकते हैं, मतलब कि सर्टिफिकेट उसे मिलेगा। University is offering 79 different academic programs from the next academic year 2024-25. Delhi Skill and Entrepreneurship University is offering 79 different academic programs from the next academic year 2024-25. We have made the website active and now the students can register themselves for admission into the programs. One thing which I wish to emphasize and share here with you is that the university has recently passed a regulation which is based on National Education Policy 2020 and National Credit Framework. All the programs which we are now offering will be involving multiple entry and multiple exit options and would be fully in compliance with the National Education Policy Vision and the National Higher Education Qualification Framework and National Skill Qualification Framework taken together. So we are offering programs in semester pattern, and each semester will comprise of 20 credits minimum requirement. But as per the NEP, the student can enroll themselves in less number of credit also. So if a student show wish, may can start learning with a 4 or 5 or 6 credits only in the first semester and so on. There is no restriction from movement from one semester to another semester, except that some of the courses which mean component of the educational program, I call courses, some of the courses may have some prerequisite. So if you have to attend a course, you have to first check that you meet the prerequisite qualification for the course. So if you meet the prerequisite qualification only, then also there are restrictions that in each semester the student will have to fill the credit registration form and the programs or courses would be allotted to him or her on the basis of the merit cum reservation policy of the university. So it's a very flexible program. You can change the stream also if you so wish. So any credit which you have accumulated in ability enhancement course would be counted even if you change the mind and now wish to pursue a program with a different focus, different discipline focus, then that is also possible. Even multiple combinations are possible, and all the credits would be pushed into the academic bank of credits, and therefore it would provide you the easy mobility from this university to another university. At the same time, if you have attended certain courses in other universities, those courses can also be counted while taking into registration here, and we will be giving exemption for award of different academic qualifications. So you have programs for 10th pass student, which we call 3-year diploma programs, which include exit option of certificate of vocation and diploma of vocation after 1 and 2 years respectively. Then we have UG certificate program of 1 year. We also have UG diploma program of 2 years. In that also you can take exit with certificate after 1 year. And we have launched several programs which we call 4-year programs, 4-year degree programs. Some of them have been named as Bachelor of Science, like we have BS Innovation and Entrepreneurship,
if you enroll yourself in BSc Innovation and Entrepreneurship, after 3 years you can take exit with BBA Innovation and Entrepreneurship, after 2 years with the Diploma in Innovation and Entrepreneurship, and after 1 year with Certificate of Innovation and Entrepreneurship. So I hope these programs will be very attractive, and the students, I appeal to make all prospective students to consider DSEU as their first option for launching their career and making their dream true. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल, इट्स मनीष। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के एडमिशंस 2024 के बारे में। तो अभी हमारे साथ है प्रोफेसर कामना सचदेवा मैम, जो कि है जॉइंट डायरेक्टर एकेडमिक्स ऑफ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो उनसे हम आपके डाउट्स पूछेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल जाए और आपका एडमिशन अच्छे से हो जाए। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों का है वो है कि दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी क्या है और ये बाकी यूनिवर्सिटी से किस तरह से अलग है। नमस्कार, ये जो दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी है हमारी, ये फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली है, और ये स्किल के कोर्सेज जो हम ऑफर करते हैं वो उसके लिए जानी जाती है। और हमारे यहाँ जो बच्चे जितने भी कोर्सेज हमने जो नए शुरू किए हैं या जो पहले से चलते आ रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन स्किल बेस्ड एजुकेशन रहता है। और हम ये कोशिश करते हैं कि जो बच्चे यहाँ से निकले उनके अंदर कोई कॉम्पिटेंसी हो, कोई स्किल हो, और हमारी सारा का सारा करिकुलम इसी पे फोकस करते हैं। ओके मैम, तो मैम अभी डीएसयू में टोटल कितने कैंपसेस हैं? डीएसयू में बहुत सारे अपने कैंपस हैं, साथ में डीएसयू का जो गठन हुआ था वो बहुत सारे पॉलिटेक्निक्स को मिला के हुआ था। तो अगर हम वर्ल्ड स्किल सेंटर्स और अपने कैंपस मिला लें तो इस बार हम कुल मिला के 24 कैंपसेस में एडमिशंस ओपन किए हैं, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिल्ली में हैं, ताकि जो बच्चे जहां रहते हैं उनके घर के पास ही उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन मिल पाए। तो मैम, इस बार जो एडमिशन हो रहा है डीएसयू के अंदर, तो स्टूडेंट्स का काफी डाउट आ रहा है कि ये मेरिट बेसिस पे होगा या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा या फिर ये सीयूईटी के स्कोर्स को कंसीडर किया जाएगा। तो मैं आपको इसमें क्लैरिटी दे देती हूँ। इस बार हम एडमिशंस मेरिट के हिसाब से खोले हैं, और डिप्लोमा के सारे एडमिशन 10th के मेरिट के हिसाब से होंगे। मतलब जो बच्चे 10th में जितने नंबर पाए हैं उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगी, जो टेंटेटिवली 18 जून को खुलेगी, और उसके बेसिस पे बच्चों की प्रेफरेंस और सीट एलोकेशन की जाएगी। और जो यूजी प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारी 3 कैटेगरी हैं: यूजी सर्टिफिकेट, यूजी डिप्लोमा और यूजी डिग्री। इन तीनों का जो यूजी प्रोग्राम्स हैं, इसको हम 12th की मेरिट, जिसे हम 12वीं की मेरिट या सीनियर सेकेंडरी की मेरिट के हिसाब से खोल रहे हैं। कोई भी सीईटी या सीयूईटी का स्कोर हम मान्य नहीं मान रहे हैं, केवल मेरिट बेस्ड ऑन 10th and 12th कोर्सेज वी आर टेकिंग एडमिशंस। तो अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और कौन सी वेबसाइट से उसे अप्लाई करना होगा? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सरल रखा है हमने। बच्चों को हमारी वेबसाइट पे जाना है, ऑल्दो हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमने डाल दिया है, लिंक्डइन पे है हम लोग, फेसबुक पे है हम लोग, ट्विटर पे है हम लोग, तो हमने वहां पे भी एडमिशन के लिंक डाले हैं। एक ई सामर्थ करके ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का पोर्टल होता है, जिसमें हम डीएसयू एडमिन ई पोर्टल या ई सामर्थ पोर्टल कहते हैं, उसके लिंक पे आपको जाना है। ये लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट में आप एडमिशंस का एक टैब है ऊपर, और एक स्क्रॉलिंग लाइन है, उसके ऊपर एडमिशंस चल रहा है लिखा हुआ 2024, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको वो सामर्थ के पोर्टल पे ले जाएगा, और वहां पे सामर्थ के पोर्टल में आप डिप्लोमा और डिग्री दोनों कोर्सेज में अपने इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। और हम एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोले हैं, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप n नंबर ऑफ कोर्सेज और कैंपस के ऑप्शंस चूज कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, जो कि 15 तारीख तक खुला है, उसके बाद मेरिट की लिस्ट आएगी और आप अपनी सीट अपने मेन पोर्टल, जो आपका यूजर पोर्टल बनेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वहां पे दिखेगा कि आपको सीट एलोकेशन लिस्ट दिखेगी, और फिर आपको जिस कैंपस में सीट मिली होगी वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे और सीट को फ्रीज करना होगा रिक्विजिट फीस देकर। ओके मैम, एक और स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि वो इस बार देख रहे हैं कि जो पहले यूजी डिग्रीज होती थी उसमें बीएस लिखा हुआ आ रहा है,
तो यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके ऊपर लागू की जा रही है, तो उससे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा इसमें? जी बिल्कुल, हमने बहुत सारे बीबीए प्रोग्राम और अदर यूजी प्रोग्राम्स का जो नॉमेनक्लेचर है यूजीसी के हिसाब से रखा है, जिसमें बीएस जो होगा वो 4 साल का यूजी प्रोग्राम रहेगा, जिसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की ऑप्शन रहेगी। ये क्या होता है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो यूजीसी ने दिया है, उसके अनुसार बच्चा कभी भी अपनी शिक्षा को बीच में ब्रेक करके जा सकता है, पर वो जब जाएगा तो उसके हाथ में कोई ना कोई तरह का एक प्रमाण पत्र कह सकते हैं, मतलब कि सर्टिफिकेट उसे मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर 4 साल की यूजी प्रोग्राम है बीएस का, अगर बच्चा 1 साल में 40 क्रेडिट करके निकलता है तो उसको यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और हाँ, अपने कोर्स करिकुलम भी इस तरीके से प्लान करेंगे कि 1 साल में जो वो कोर्सेज पढ़ेगा वो अपने आप में कंप्लीट हो, ताकि जब वो सर्टिफिकेट लेके निकले 1 साल के बाद तो उसके पास कोई एक स्किल हो, कोई कॉम्पिटेंसी साथ हो। उसी तरीके से अगर वो 2 साल में चला जाता है, किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं करता, तो उसको यूजी डिप्लोमा देके हम भेजेंगे। वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसने जो 2 साल शिक्षा में लगाए वो उसको एक प्रमाण पत्र के साथ जाएगा, और तीसरे साल उसको डिग्री मिलेगी जो कि यूजी डिग्री कहलाएगी। वो बीएससी भी हो सकती है, वो बीए भी हो सकती है, और वो अदर यूजी डिग्री का नॉमेनक्लेचर जैसे बीकॉम हो गया, ये सब भी हो सकती है। और जब अगर वो 4 साल पूरे करेगा तो उसको बीएस मिलेगा, बैचलर ऑफ साइंसेस। अगर वो कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स भी कर रहा है तो बीएस कहलाया जाता है, बैचलर ऑफ साइंसेस। वो 4 साल की डिग्री होती है और उसके अंदर कुछ रिसर्च कंपोनेंट लाइक ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप भी उसका 4थे साल में हिस्सा होगा। तो ये बच्चों के हित में है। मोर स्टूडेंट सेंट्रिक एडमिशंस और एजुकेशन सिस्टम को लाने के लिए किया गया है, और वी आर फुल्ली कमिटेड टू ऑफर बेस्ट ऑफ द थिंग्स टू आवर स्टूडेंट्स। हम नए हैं इंडस्ट्री में, बट हम स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के लिए कमिटेड हैं। तो ये तो काफी अच्छा है कि अगर कोई स्टूडेंट बीच में अगर ड्रॉप आउट कर जाता है तो उसका वो ईयर बर्बाद नहीं जाएगा, उसे सर्टिफिकेट बिल्कुल ईयर वाइज मिलता है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर क्लियरिंग ऑल डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर आपको और भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अब बाकी कोई भी डाउट आएगा तो क्लियर करते रहेंगे समय। थैंक यू।